लोकसभा में देश का वार्षिक बजट पेश, हर सेक्टर और हर वर्ग को साधने की कोशिश, अर्थव्यवस्था की मजबूती और विकसित भारत लक्ष्य। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट का राज्य में व्यापक स्वागत, चैंबर ने कहा विकास को मिलेगी गति, भाजपा ने सराहा, विपक्ष ने नकारा, आम लोग हर्षित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निजी क्षेत्रों की भागीदारी से युवाओं की क्षमता निर्माण पर बल, असम का आज करेंगे दौरा, तिनसुकिया में रैली को करेंगे संबोधित। रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, कई अपराधी गिरफ्तार, चोरी के सामान, मादक पदार्थ और नकद जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले लोकसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश का वार्षिक बजट पेश किया। आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश विकास के पथ पर अग्रसर है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में भारत विश्वास के साथ कदम उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि लोक लुभावन बातों से इतर सरकार के लिए जनहित प्राथमिकता है। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. युवा शक्ति से प्रेरित इस बार के बजट में कई घोषणाएं भी हुई हैं। आइए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से समझते हैं बजट की विशेषताएं।
खास फोकस इस दौरान नजर आया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का ये बजट पेश किया है, जिसको पेश करते उन्होंने कहा कि हमने गरीबी हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आर्थिक विकास में तेजी बनाए रखने के लिए प्रमुख लक्ष्य। तो आज का ये बजट बेहद ही खास और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जीएसटी रिफॉर्म सबसे बड़ा कदम, ये बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त ये राहत दी गई थी और बजट में एक बार फिर से बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी की बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान भी किया है कि ग्रामीण विकास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो वहीं मनरेगा योजना भी जारी रहेगी और 30,000 करोड़ रुपए इस पर भी खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला युवा शक्ति से प्रेरित ये बजट पेश किया है, जिसमें खास तौर पर गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर बजट में फोकस रखा गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर भी जोर सरकार की तरफ से नजर आया, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है, औद्योगिक विकास है, एमएसएमई सेक्टर है, जिस पर सरकार का ध्यान पूरी तरह से समय केंद्रित है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का भी चुनाव सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है बजट 2026 में। इसके साथ ही बजट में बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर भी सरकार का सीधा फोकस। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए डानकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारा का भी ऐलान किया गया इस दौरान बजट में। और अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज भी बनाए जाएंगे, इसका भी प्रस्ताव रखा गया। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी आज के इस बजट में दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने पर भी सीधा फोकस है। उसके लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की भी घोषणा आज बजट में की गई। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। तो वहीं हेल्थ केयर, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आगामी बजट को मंजूरी प्रदान की गई। लोकसभा में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी। इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। खिलाकर शुभकामनाएं राष्ट्रपति ने यहां पर दी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। लोकसभा में आज पेश केंद्रीय बजट का राज्य में व्यापक स्वागत हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण देखा। इस दौरान वे बजट की बारीकियों से अवगत हुए और बजटीय प्रावधानों को देश के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 11 वर्षों में हर वर्ग और हर सेक्टर का चहुमुखी विकास हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने वाला साबित होगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।
उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी देश के आम बजट को विकसित राष्ट्र का नींव बताया है। चैम्बर का मानना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सेक्टरों पर फोकस किया है ताकि देश के समग्र विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आम बजट को लेकर राज्य के लोग जहां हर्षित हैं, वहीं झामुमो और कांग्रेस जैसे पार्टियों ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। पार्टी ने कहा कि बजट से राज्य के लोगों को कई अपेक्षाएं थी, लेकिन बजट भाषण से उन्हें निराशा हुई है। झारखंड जैसे राज्यों को विकास के लिए सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निजी भागीदारी से युवाओं की क्षमता निर्माण पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से झारखंड के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। निजी क्षेत्रों ने शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्रों में व्यापक साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम के तिनसुकिया में ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कल रांची में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान बैंक से जुड़ी गतिविधियों और भावी कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री अवगत हुए। मौके पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम और रीजनल हेड आलोक कुमार तथा चीफ मैनेजर पीयूष श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राज्य भर में सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी नामजदगी का पर्चा खरीदने में व्यस्त हैं। कल से नामांकन में तेजी आने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। निकाय चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू हो चुके हैं। खूंटी में कौशल विकास केंद्र के प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए प्रेरित किया। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि सभी लोग मतदान जरूर करें। घर से सभी सदस्य अपने वोट देने के लिए मतदाता पे निकले, घर से सभी लोग। मैं सभी युवतियों को सहयोग करती हूँ वोट देने की। तो जितने भी युवा, महिला, बुजुर्ग सभी कोई आके मतदान करे। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई इन दिनों तेज है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन सुगर और हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर इन अपराधियों को दबोच लिया। जमशेदपुर में पुलिस ने चोरी के 3 घटनाओं का खुलासा करते हुए चोरी के सामान के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। इधर हजारीबाग में पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोर्रा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अंजनी अंचन ने बताया कि तस्करों के पास से ब्राउन शुगर और करीब 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उधर टाटी झरिया थाना क्षेत्र में एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 60 पेटी शराब जब्त किया गया। पलामू के पाके थाना क्षेत्र के आसेहर गांव के कुसड़ी इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से इन तीनों की हत्या की गई है। एक युवती घायल है जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हमारा ससुर के बोल रहा था कि दैया, तो इसी चलते उसका बाप मर गया। तो बोला कि हमारा बाप के खा गया, मरा दिया। ऐसे या तू मार दिए, उन लोग के मार दिया था। तब हम गए, तू लोग के देखे टांगी और चाकू हाथ में। रविंदर एगो के प्रमोद, ससुरवा के और ससुरा के और देवरवा के 3 लोग। कौन मारा है? मम्मू बुला जाते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो का दिल्ली में कल समापन हो गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दूरदर्शन के स्टॉल का भ्रमण कर प्रसारण पर गुणवत्ता पर बल दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी BES एक्सपो 2026 का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रसारक और नवोन्मेष एक मंच पर जुटे। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दूरदर्शन के स्टॉल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं और तकनीकी प्रदर्शन का जायजा लिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि हमारा ध्यान अब सीमावर्ती गांवों तक समाचार और राजनीतिक घटनाओं की पहुंच पर है। The technology takes the content to reach the all over the world, as well as the broadcasting sector. I mentioned the newspapers, satellite TVs, digital media, OTT platforms, and our government took an initiative to reach out of the border villages also. The border, our Honorable Prime Minister always think the border villages is not a last village. The border villages is the first village of the country. So we want to be focused. So there also they want to be whatever the news or political events or our Indian cultural events has to reach to the first that border villages. So जमशेदपुर में रेडियंट झारखंड 2.0 मेगा प्रदर्शनी का समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों ने विभिन्न तरह के मॉडलों को देखा, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। इस दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास गतिविधियों को सराहा तथा विकसित राष्ट्र निर्माण में सामूहिक भागीदारी पर बल दिया। जमशेदपुर में नवाचार और तकनीक का 3 दिवसीय उत्सव रेडियंट झारखंड 2.0 आज अपनी सफलता की अमिट छाप छोड़ते हुए संपन्न हो गया। समापन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर नागरिक और युवा तकनीकी रूप से दक्ष होगा। आपका, हमारा सबका राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका हम पालन करें और इस राष्ट्र को परम वैभव तक शिखर तक पहुँचाने में रेडियंट झारखंड ने इतने सुंदर सुंदर स्टॉल लगाए, मैं अभिभूत हूँ। अलग अलग तरीके का, मच्छर काटने से लेकर के, उनसे बचने से लेके, उनसी लावा की पहचान से लेकर के, आपका IT विभाग के तमाम प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे NML के, IT सेक्टर के आप देखेंगे। इसका बायोडाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अलग अलग प्रदेश से लोग आकर के अपनी वस्त्र कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे कह सकते हैं पूरा बैलेंस्ड यहाँ पर हर प्रकार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मानव केडिया ने इस आयोजन को केंद्र और राज्य के बीच सेतु बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने जैविक विविधता और IT जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं दिखाई हैं। प्रदान करने का एक मंच भी है। भारत बहुत तेजी से एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जिस तरह से भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय संघ के साथ भारत ने किया है, मैं समझता हूँ भारत बहुत तेज़ी से विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। सोना देवी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की एक लंबी छलांग है। राज्य से दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, तो उनका भी मोटिव ये है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, बायोटेक्नोलॉजी में भी वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो झारखंड गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इनिशिएटिव लेके उनको भी इनवाइट करना चाहिए। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए झारखंड में कि वो इन्वेस्टर्स को यहाँ इनवाइट करे और यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बना के उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। प्रदर्शनी के समापन पर छात्रों के चेहरे की मुस्कान देखकर कहा जा सकता है कि रेडिएंट झारखंड 2.0 अपने उद्देश्य में सफल रहा। निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों से न केवल ज्ञान का प्रसार होता है, बल्कि औद्योगिक और शैक्षणिक विकास को भी नई ऊर्जा मिलती है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश के। राष्ट्रीय फलक पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में राज्य का परचम इन दिनों लहरा रहा है। चेन्नई में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक एशिया कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन रहा है। टीम ने 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचते हुए देश और राज्य को गौरवान्वित किया है। भारत ने कल तिरुवनंतपुर T20 क्रिकेट मैच जीत लिया। ईशान किशन की शानदार पारी के बदौलत टीम इंडिया ने कीवी टीम को 46 रन से मात देते हुए 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली। भारत ने 5वें T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 46 रन से हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है। शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ईशान किशन के शतकी और सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकी पारियों की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। ईशान किशन ने सिर्फ 43 गेंद में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर और 4 गेंदों में 225 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से फिन एलन ने 80 रन की पारी खेली। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 1 फरवरी को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। बुलवायू के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में सुपर 6 का मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम का अभी तक अंडर 19 विश्व कप में अजय अभियान देखने को मिला है, जिसमें भारत ने 4 मैच खेले हैं और सभी को जीतने में कामयाब रहा। वहीं पाकिस्तान टीम ने भी 4 मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 3 मुकाबले जीतने में कामयाब रही। एक मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 फॉर्मेट में अब तक कुल 29 बार भिड़ंत हुई, जो अलग अलग टूर्नामेंट में देखने को मिली है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेकर बात की जाए तो भारतीय टीम का दबदबा रहा है। टीम इंडिया ने अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ 29 में से 16 मुकाबलों को अपने नाम किया है, तो वहीं पाकिस्तान अंडर 19 टीम सिर्फ 12 मैचों को जीतने में कामयाब हो सकी है। वहीं एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ था। दोनों टीमों के बीच पिछले 10 मुकाबलों के नतीजों को देखा जाए तो उसमें भारतीय टीम ने जहां 6 बार जीत हासिल की है, तो वहीं पाकिस्तानी टीम सिर्फ 4 मैचों को जीतने में कामयाब हो सकी है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 1 जीत हासिल करनी है। इस लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला ये मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इस मैच में एक बार फिर से सभी की नजरें टीम इंडिया के ओपनिंग स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अलावा कप्तान आयुष महात्रे के प्रदर्शन पर भी रहेंगी। टीम इंडिया के लिए अभी तक इस विश्व कप में सूर्यवंशी के बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिली हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। टीम इंडिया अंक तालिका में पहले नंबर पर है। अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ ये मुकाबला हारती है तो उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वहीं टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी
और पाकिस्तान की टीम अंडर 19 विश्व कप से बाहर हो जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच ये इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राज्य में सर्द हवाओं की वजह से एक बार फिर ठंड में थोड़ी वृद्धि हुई है। कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई। गढ़वा में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 6 फरवरी तक कुछ इलाकों में कुहासे का पूर्वानुमान है। लौहनगरी जमशेदपुर में शेफ ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान अपना स्टार्टअप शुरू कर आर्थिक स्थिति मजबूत करने वालों और अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराने वालों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आप नौकरी के पीछे ना भागें, खुद अपना स्टार्टअप शुरू करें, आप नौकरी देने वाला बनिए। इसी को आधार बनाकर अपना स्टार्टअप शुरू कर आगे बढ़ने वाले उद्यमियों को जमशेदपुर में आयोजित शेफ ग्रेजुएशन समारोह में सम्मानित किया गया। अपना स्टार्टअप शुरू कर दूसरों को रोजगार देने वालों में से एक हैं डॉक्टर शेफ प्रिया गुप्ता, जो 21 वर्षों से कुकरी क्लासेस चला रही हैं। इन्होंने अब तक करीब 18,000 लोगों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया है। मेरे क्लासेस भी होते हैं और हमारे स्टूडेंट देश विदेश में काम भी कर रहे हैं, अलग अलग होटल्स में। प्रिया गुप्ता की मां बताती हैं कि प्रिया ने पहले खुद खाना बनाने की ट्रेनिंग ली और कई लोगों को स्वावलंबी बनाया। आगे तो अपने ट्रेन सीखी मास्टर, और उसके बाद फिर ये अपना घर से की। उसके बाद यहाँ विष्णुपुर में अपना ये रोजगार खोली, सिखाना चालू की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कर्मी पूर्वी घोष का कहना है कि प्रिया गुप्ता महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौध तैयार कर रही हैं। तो इसमें खास करके आप देखिएगा, महिलाओं कुकिंग के प्रति अपना रुचि होता ही है, क्योंकि परिवार को संभालना उन्हीं को पड़ता। और उसके साथ इस तरह से एक विशाल युग में अपने को नियोजित करके कोई अगर कुछ इनकम उससे मिल सके तो इसमें और 4 चांद लग जाती है। समारोह में सम्मानित और सर्टिफिकेट पाने वाली सभी शेफ ने बताया कि वो आज अपने घर से बिजनेस चला रही हैं। किसी ने तो खुद की दुकान भी खोल ली है। क्लास के बाद मैम का जैसा बिहेवियर था, सिखाने का जो तरीका, क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली माहौल था वहाँ का। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी में और आगे करूँ। तो डिप्लोमा कोर्स के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने बेकरी में डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया। बेकरी है, मैं खुद बनाती हूँ, 2-3 स्टाफ भी रखी हूँ शॉप में भी। और जैसे सबको अपना ये होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, वो मैं हूँ। हम अपना घर से बेकरी चलाते हैं और सबसे बड़ा बात है कि मैं मतलब एक अर्निंग वुमेन में भी आती हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, मैम भी उन्हीं में से एक है। और मेरा खुद का भी इच्छा है कि हम जो अभी खुद कमा रहे हैं, आगे जाके हम और 4 महिलाओं को काम दें। मेहनत से खुद को सबल बनाती महिलाएं समाज के लिए उदाहरण हैं। और अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा में देश का वार्षिक बजट पेश, हर सेक्टर और हर वर्ग को साधने की कोशिश, अर्थव्यवस्था की मजबूती और विकसित भारत लक्ष्य। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट का राज्य में व्यापक स्वागत। चैंबर ने कहा विकास को मिलेगी गति, भाजपा ने सराहा, विपक्ष ने नकारा, आम लोग हर्षित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निजी क्षेत्रों की भागीदारी से युवाओं के क्षमता निर्माण पर बल। असम का आज करेंगे दौरा, तिनसुकिया में रैली को करेंगे संबोधित। रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, कई अपराधी गिरफ्तार, चोरी के सामान, मादक पदार्थ और नकद जब्त।